bullies in the school, when they saw the teacher bully me on account of my father's business, मैं तो लॉटरी बेचूंगा, और वही बेची। 5 करोड़ रुपए की रोज की टर्नओवर करी। ये नहीं मैंने रोज की, इसी से हिंदुस्तान का हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर बन गया था। इनकम टैक्स के रेट्स होते हैं, आपके सोफे फाड़ के भी देखते हैं, यहाँ तो नहीं नोट छुपा रखे। ईगो आज मैं मर्सिडीज गाड़ी चला रहा हूँ, 56 इंच की छाती है, सडनली एक रोल्स रॉयस मेरी गाड़ी को ओवरटेक करती है, तो मैं छोटा सा फील करने लगता हूँ। मेरा साइज तो फिक्स है ही नहीं। अहम से जिएंगे तो आप अपनी खुशी के दुश्मन हैं। ट्री तो मेरे फेफड़े हैं, मेरे लंग्स हैं। पीपल एंड प्लेनेट, धरती माता। पर इसके लिए ना वननेस होना बहुत जरूरी है। जैसे जमीन खरीदनी है पेड़ लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए तो सोचा भी नहीं था। So let's go back to the beginning. A lot of people does not know that your family comes from Pakistan when the partition happened, right? So what were the circumstances during that time of yours? क्योंकि आज जो भी हम देख रहे हैं, that is a totally different than what it started from. Yes. See, my parents were migrants. They moved from Pakistan into India as migrants. And they had untold hardships to face in those days. I'm born much later. I'm born in 60. So they had been in India for 13 years. They had been married for 3 years when I was born. And my father, his family came to Jalandhar from Pakistan. And then he moved to Delhi in the mid-50s. And there was still a lot of struggle when I was born. He had a shop in Old Delhi, Sadar Bazaar, where at some point he started the business of lotteries. And This is back in which year? he would have started the business of lotteries in probably the mid to late 60s, when I was 5-10 years old. It was struggle. It was actually struggle till I was 21 years of age. And but then he had grown his business, he had to struggle. And then the Sadar Bazaar shop, he would do paper plates, kitchenware, lotteries, rubber bands, trading, selling. My God. And 1981, at the age of 21, was the time when I joined the full business on my own. He helped set up a company with his ex-employee, his brother, who needed to be rescued from Punjab because of Punjab terrorism at that time. So he had to be got out of there, and he was made a partner in a new company with me, ex-employee, his brother, 2 more subordinates in the lottery business. And these 5 people were put together by my father as a founder in a separate company, which started to do Sikkim lotteries. And somehow, from that time onwards, the family started to do extremely well. Our founder actually started to do well in his own company 1 or 2 years after he got us off the ground. It so happened, destiny. Nice. And how was your journey started in the business? Is it pre-planned या फिर आपको it was destiny? Destiny. Okay. I was all of 14 when he would take me out on his business travels. Okay. Weekends, he will take me to his Sadar Bazaar shop from Lajpat Nagar, where we lived. And then during holidays, he would take me to the shop. By the time I was 16, he sent me to a motor driving school. Okay. I started driving. We had a beaten up Ambassador car. He had a driver, but he couldn't drive himself. Okay. So whenever the driver abruptly went on a leave, he would Used check. to drive. He would check if there's nothing much happening in my studies or school, if it's a holiday, if it's a weekend. Oh, you be my driver for the day. Ever since I was 16, driving in Old Delhi where there are tongas, rickshaws, tight traffic. So my life, hardship, struggle, working began there. I didn't lead a normal childhood like school, high school, college, where you try
drinking beer, smoking, girlfriends. Very little bit of that, just 10-20% of what a normal adolescent and young life entails is what I got exposed to. That's destiny. The uniqueness in my business journey is this. When I was in school, a particular teacher really did not like the idea that I came from a resettlement colony in Lajpat Nagar. I struggled to speak in English. This was an English school. My father sold lotteries for a living. So he would call me a raffle man in class and make fun of me. And at a time, he said, "Oh, tomorrow you get me a lottery ticket from your father's shop. If you don't get it, you'll get caned. Later on, if I don't win a prize, you'll get caned again." He actually kept his word. The bullies in the school, when they saw the teacher bully me on account of my father's business, they got a cue, and that triggered a life of school times of bullying that I had to face. But the beauty is, when I look back, it kept strengthening my resolve that I will grow up and be in the business of lotteries. Rather than thinking the logical way, this is something that's got me embarrassment, torture, all kinds of unhappiness. So I don't want to do this. No, this is what I'm going to do when I grow up. And that was the beginning of making me resolute. Whatever I take up, whether success will come after a short time or an extremely long time of 30 years, I'm there for good till I turn it around. That's been my life story in selling lotteries as a young man of 21 independently, and later Karma Lakelands Happened. golf resort and residences based on sustainability as our religion, I'll call it. Beautiful. This reminds me of an incident, sir, of my own personal story. So I live with my mama mami and nana nani. I've been raised by my nana nani only, and now I live with my mama mami. So my mom and dad got divorced when I was 1, I think. So ma went to Mumbai for providing for me, and dad moved on in his life. So while growing up, I am very connected to my mami. So this reminds me of an incident, and I also did not had a very conventional childhood. So I could relate to what you are saying. बाकी when I was about to start my own company, तो मैं और मामी balcony में we were standing, and मामी asked me कि तू कॉलेज जा, तू ये सब क्यों कर रहा है? You should be going to a regular college and living your life. And at that point, I just said, कि I don't think I have anything to lose, right? So starting a business does not feel that I will lose something or कुछ there is something on stake. I do not already have, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है. So what will happen? क्या ही होगा? It's the choice we make. But how can one navigate and not become bitter? अपना attitude positive होएगा if you're spiritually inclined. By the way, spiritualism is different from religion. My guru, Sadhguru, says they are opposite. Spiritualism unites you. Religion divides you. Very true. Spiritualism is living positively, living inclusively. You are in sync. You are in union with all the forces of the planet, and you are inclusive. So your thinking, your mindset with other philosophies of people, other religions of people, other geographies, you're inclusive. That's the meaning of spiritualism. So somewhere down the line, life's bashing. At a much later time, I did meet Sadhguru, and my journey of spiritualism further scaled up, and started to do yoga. Yoga is not simply a bending exercise. It's being in union. And now I do understand a little more of that, having been influenced by Sadhguru. Yeah. A lot of people do or practice yoga but does not feel yoga.
That's not yoga. Yes. That's just a simple exercise for physical wellness. Yes. Very true. Isn't it? That's how I define it. And in the Western world also, yoga is now popular, and it's mostly being considered, it's being minimized Okay. purely for physical wellness. That is the byproduct of yoga. That's not the main pursuit of yoga. But now most of the world is treating it as the main pursuit of physical wellness. True. What is the main pursuit of yoga? The main purpose of yoga is to be in union, in sync with the cosmos, which would automatically translate into positivity, inclusiveness. See, let's say, if me and a tree, we are inclusive. I understand that what I exhale, that tree inhales, and what the tree exhales, I inhale. So there's a symbiotic, a very, very deep interrelationship between the two of us. So nobody will have to tell me to protect the tree or grow another tree. Nobody will have to, because I'm inclusive. I understand. Similarly, if the whole universe understands we are all interdependent on each other. True. Very true. Right? Very Now, if there was no interdependence, America and Israel bombing Iran should not have bothered India very true. Or anybody in the or anybody. yes. But the whole universe, everybody is suffering. Even birds, bees, and butterflies are suffering. Millions and billions of them are dying. And if the whole planet gets more polluted because of so much of bombing at each other, everybody's. So, to me, again, yoga is union and inclusiveness, understanding the interconnected nature of the planet and the people. and people should start feeling it rather than just practicing as in It's experiential. It's not simply an intellectual philosophy. It's the reality of life. True. Yeah. So were you always inclined towards spirituality? Ya fir it happened because you met Sadhguru? Or it got speeden up? It got hastened. Okay. Some kind of a base nature I had. A lot would go to my mother. Now, if you talk about inclusiveness, there's one incident that tells you the height of inclusiveness. When my mother must have been in her late 40s or early 50s, my younger brother, her son, 18-year-old, gets killed in a bus accident. Okay. And a few hours after this, that heartbreaking news has come to her, she's calling my cousin Rajesh and telling him, listen, I'm overhearing the bus driver has been taken away by the police. You please go to the police station and get him bailed out. My child is not coming back tonight, I know, but that bus driver is somebody's child. He has a family. He has not done it intentionally. Please make sure he's back to his family tonight. My God. This is inclusiveness. My. Right? Height of it. So I come from that mother. Yes. When Sadhguru came in my life, I traveled by leaps and bounds in my yoga, in my spiritual journey. He's my guru. And, but whether it's planting trees, when we started to do well at a certain time in life, I was in my early 20s now. We moved from a very small house to a super large house in comparison. And we were planting trees around inside garden and all. Then she says, why don't you plant some outside? Then she says, I suggest you cover the entire street. Opposite side of the house, next 5, 7, 10 houses, outside them also, and make sure that no tree dies. Okay. So that is there, and much later, when I am independent and have the resources, one day, my young daughter,
on her 5th birthday, she asked me, "Dad, what is your favorite color?" I start thinking because as such, I didn't have anything in mind, a particular favorite color. And I knew her second question would be why. So I started dealing with the second question's answer while deciding what to say. So I said, my favorite color is green. Naturally, why? The color of plants and trees, because they give us oxygen, they give us shelter, they are what make the whole planet live, whether it's birds, bees, butterflies, or humans. And after that day, giving this answer fired me up. And a certain time later, I walk into the office, and there's a group of dealers who've come from South India to meet me. And I just announced, we are changing the corporate color of the logo from brown to green, the color of plants and trees. And now onwards, other than business, we will understand our business of life and work towards greening the planet to the best of our ability. Aham Brahmasmi, I am the universe. So I will start from my own home. I will have a philosophy, greening like charity should begin at home but should not end there. So I'll do this, you all do this, and the lottery tickets that from the state of Sikkim I was dealing with would now onwards carry social messages. And one of the social messages I would carry was grow more trees. And so this has been a part of me for a long time. Sadhguru coming in hugely scaled up my passion towards working for soil, air, water, inclusiveness. So I have two questions, but let me. मेरा प्लान था कि मैं बाद में ये वाला चीज़ पूछूंगा, but since you have told me about the incident with your mother, I wanted to ask you कि आपका आपकी मदर के साथ में कनेक्शन या रिलेशनशिप कैसा था ड्यूरिंग द चाइल्ड? बहुत बहुत ही पैशनेट, बहुत ही अच्छा था। और एनवायरनमेंट की जर्नी में, रिस्पॉन्सिबल लिविंग की जर्नी में एक ये भी चीज़ हुई कि मैं बहुत सोचता था, जब मैं इस धरती से जाऊंगा मेरी बॉडी को कैसे डील करेंगे, ये तो जलाएंगे तो प्रदूषण और ज़्यादा करेंगे। तो एक दिन मैंने अपना सोल्यूशन ढूंढ लिया, वो भी सदगुरु के आश्रम से ही। एक स्वामी जिनको डेथ रिचुअल्स स्वामी कहते थे, ओके। उनको मैं मिला। सदगुरु से नहीं बात हो पा रही थी, ये मेरा क्वेश्चन था। तो हालांकि मैं उनको 1-on-1 10 साल बहुत इंटीमेटली जानता था। तो स्वामी से मैंने पूछा कि सदगुरु के क्या व्यूज हैं अबाउट आफ्टर डेथ, बेरियल वर्सेस क्रिमेशन पे। तो उन्होंने कहा हमारे कई स्वामी जो अपना शरीर छोड़ते हैं तो उनको हमने बेरी भी किया है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ क्रिमेशन नहीं होना चाहिए, दोनों होते हैं। और ज़्यादा आपके क्वेश्चन है तो सदगुरु की एक बुक है टाइटल्ड डेथ, ओके। वो भी पढ़ लो। फिर मैंने वो ढूंढी किताब, वो पढ़ी, और इवेंचुअली मैंने अपना फैसला कर लिया, व्हेन आई डाई I will go 6 feet under, from soil to soil smokelessly, i.e., I'll be buried and I will become soil to soil smokelessly. I will not cause any combustion and further pollution on the planet. I know everybody can't do that, राइट। but I chose that for myself. When my mother passed away and the ritual was being discussed, I at that time told my sister, we are just brother and sister. So I told Anu that this is what I've thought about myself. This being a touchy subject, I never talked about it to you or anybody else in the family. But because we're talking about mom's ritual, my suggestion is that we do the burial. But
your decision will be final. So because I left the decision for her to take, she said, I go by your wish. And mother actually was buried in the Karma Lakelands campus in one corner. So there are quite often times I just think of her, I want her blessings. I just collect some flowers, just go there. I energize myself being there. Any particular memory of you with your mother, a incident or something like that, which you cherish the most? The most was the way she handled the departure of my brother. How she said, look, I'm not going to break down and be devastated and allow my energies to be wasted in the wrong direction. Wow. I have a family, I still have 2 children. So her spiritual lesson was cherish what you have. It immensely hurts, especially when you lose a dear one, a child of your own. Much later in life, I lost 2 children in a car accident, but I handled it differently than most people would. What kept buzzing immediately after the loss of my 2 children was that the business of life must go on uninterrupted, free. So rather than allowing your energy to be leaking in immense grief, not that I didn't go through it, but let's change gears and put all our energies in positivity, the business of life actually, and that's what I did. So whether mother's inclusiveness in forgiving somebody or planting trees or just being happy, resilient, we were reasonably lower strata of society financially, but she was a very happy human being, a very loving human being. She didn't bother about this person is from this religion, that religion, whatever. Her masseuse was from the Dalit community, and she was like her best friend. She would chat with her, she would be with her. At times, she'll say, you're like my sister to her. So these are things that I've taken from my mother. Wow. Okay. Coming back to the business aspect, sir. When you joined the business, you started off in Sikkim. Any particular reason for that? Why Sikkim? Predestined. My father was in the lottery business. He would sign up contracts after he scaled up his business to be the sole distributor or an organizer. That's what they were called. So he was already the organizer of Manipur and Nagaland lotteries. Okay. When he kept trying other states to expand his business, it so happened that the Sikkim government was receptive to his proposal. And when they did decide and agreed to give us the agreement, the contract for the lotteries of their state, he decided to put together 5 different people, his older brother, his ex-employee, his person who used to draft letters for him. Because dad wouldn't be able to write English or draft English letters. So he had the wisdom, but he did not have the English language. So he had somebody who would just do that. And that person was made as a partner in a new company. And that's how I got into the business, because initially he called it Kailash and Company from my mother's name. Okay. Then he abbreviated it to call it K and Company. Okay. And instead of mother being made a partner, he thought I was already 19 years of age. She made me a partner. And that went on to do some glorious business. When things were changing, like from जब हमारे पास कुछ नहीं होता और जब हमारे पास चीज़ें आने लगती हैं, तो a lot of things changes. Your perspective toward life changes. आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, everybody starts, मतलब या तो साथ आ जाते हैं या तो दूर हो जाते हैं. ऐसा कुछ हो रहा था उस समय? हमेशा होता आया है, अभी भी होता है, तो वो तो है ही। लेकिन जहाँ तक हो सके आदमी धरती पे बना रहे,
पैसा हो या ना हो, आज है कल नहीं भी होगा, कल नहीं है कल आ भी सकता है। तो इट्स लाइक बड़ी पहले मैंने एक चीज़ फ्रेज़ करी थी, ईगो, अहम। आज मैं मर्सिडीज़ गाड़ी चला रहा हूँ, 56 इंच की छाती है, अहम में झूम रहा हूँ, और सडनली एक रोल्स रॉयस मेरे इस गाड़ी को ओवरटेक करती है, तो मैं छोटा-सा फील करने लगता हूँ। तो मेरा साइज़ तो फिक्स है ही नहीं, कभी छोटा-सा फील कर रहा हूँ, कभी 56 इंच फील कर रहा हूँ, अहम की वजह से। तो ये अगर आप अहम से जिएँगे तो आप अपनी खुशी के दुश्मन हैं। इफ यू लव योरसेल्फ, यू विल लिव बाय ईगो। ये मेरे को समहाउ पहले ही समझ आ गई थी। जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी, मैं सिक्किम में था। वहाँ से बहुत जल्दी मेरे को क्रीमेशन के लिए दिल्ली आना था। बाय चांस फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी। प्लेन चार्टर करने की कोशिश करी। एक बारी चार्टर के लिए उन्होंने ओके कर दिया, बाद में नहीं हुआ। तो इवेंचुअली इतना बड़ा रिचुअल मेरी एब्सेंस में हुआ, और अच्छा, मेरे को एब्सेंस में हुआ, यू कुड नॉट। आई कुड नॉट मेक इट। Normally people come from overseas and cremations, etc. rituals happen after they've arrived. But for some reason, logistics, complications, despite the fact that I have immense amount of money in my control, I can charter a plane to get from point A to point B, I still could not make it. That was a huge turning point, a huge realization in my life that money is nothing against the wishes of God, against destiny. And if it is nothing, please don't treat it as your God. वाओ! It has its right place in your life. Please do not treat it as your God. Do not get arrogant if you have more than others. Just stay human, stay balanced, transcend ego. So, this incident in my brother's life being extinguished and me not being able to join in was a lesson on becoming humble. And that was the age I could have gone the other way. So, my various life instances, influences, my mother's influence, Sadhguru, that's what made me the human that I am today. I have a mentor, sir. His name is Vishal Gupta. He's a scientist at IIT Delhi. I met him on a Kedarnath trip after COVID. So he's my one of the early mentors. उन्होंने मेरे को बहुत प्यारी रिसेंटली एक बात बोली थी कि हर कमाई पैसे की नहीं होती, कुछ कमाई इंसानों की भी होती है जो अपनी लाइफ पे कमाते हो। सो अगर आपको, और हमने ये सोचने लगा, हम आजकल ये सोचते हैं कि एवरीथिंग इज मनी ओनली, बट नहीं, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट एंड अ मीडियम, मीन्स टू एन एंड बेसिकली, बट इट इज़ फॉर द पीपल। तो जो हमारे आसपास लोग हैं, दैट इज़ योर रियल कमाई। आप समाज को क्या देके जा रहे हो, आप किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर यू हैव। बिकॉज अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो जितना भी कमा लो हमेशा किसी ना किसी से कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो ऑलवेज फोकस ऑन पीपल रादर देन material stuff, more than that. So this is what I could relate to what when you was I also keep saying, I use another word, people and planet. people and Dharti Mata. yes. पर इसके लिए ना वननेस होना बहुत जरूरी है। जैसे so I love wildlife. When I started podcasting, I got introduced with wildlife and I realized कि अगर कोई भी एनिमल, पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे आपने एक बहुत सुंदर बात बोली कि जो ट्री के थ्रू मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, मैं जो ब्रीथ कर रहा हूँ वो ट्री ब्रीथ कर रही है। Yes. पर वी डू नॉट सी दैट एज वन, वी सी दैट एज डिफरेंट, कि ये ट्री है और मैं कुछ हूँ और हमारा कुछ लिंक नहीं है। सो हम लोग ऐसे देखते हैं, ट्री तो मेरे फेफड़े हैं, मेरे लंग्स हैं। बट हम दिखते नहीं ना उसको वैसे। वी जस्ट थिंक दैट अदर वे अराउंड। या यही तो प्रॉब्लम है। अगर ह्यूमन कन्वीनियंस की वजह से हम प्लैनेट का इंटरेस्ट है, प्लैनेट की हेल्थ, बाकी ह्यूमंस की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दें, कितना बेहतर होगा। लेकिन ये कन्वीनियंस की वजह से ही हम ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी आर नॉट बीइंग इंक्लूसिव। Inclusive is a very beautiful word. Can you please explain it more for the people? How अगर can person सारी कायनात को हम
इंटरडिपेंडेंट वन समझें तो उसको इंक्लूसिव कहूँगा। जैसे मैंने अभी पेड़ की बात करी, पेड़ और मैं, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है इंक्लूसिव ना होने की। पेड़ को मेरी ज़रूरत है, मैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ सांस लेने के लिए, बहुत ज़रूरत है उसको मेरी, और उसकी मुझे ज़रूरत है। इसी तरीके से ऑयल सप्लायर्स ऑफ द वर्ल्ड की ऑयल कंज्यूमर्स को ज़रूरत है। वो बीमार हो जाएंगे, उन पे बॉम्बिंग हो जाएगी, हमारे पास ऑयल नहीं आएगा, हमारे चूल्हे कैसे चलेंगे, राइट। हमारी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलेगी। सो अगर ये सारी चीज़ हम समझ जाएं, मज़हब की भी यही बात है, हर मज़हब का होना ज़रूरी है, हर माइंडसेट का ज़रूरी है, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस किसकी क्या है, मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, जो स्ट्रेट लोग हैं वही बेस्ट होते हैं। मेरी अपनी बेटी LGBT क्यू कम्युनिटी की स्पेशलिस्ट काउंसलर है, वो काउंसिल ही इस कम्युनिटी को करती है, और इस कम्युनिटी पे जब कोई प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट पॉलिसी की, कोर्ट एडवर्स ऑर्डर्स की, तो वो तड़प उठती है। तो मतलब उसको कितनी इंक्लूसिवनेस है उस कम्युनिटी के साथ। तो मतलब इस धरती पे हर एंगल से कीड़े मकोड़े, अब आप देखिए, अगर रिवर्स मान लीजिए, उनमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की टॉक्सिसिटी पॉइजन आ रही है, आपकी सुवेज रॉ एंड अनट्रीटेड केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज क्लोजर टू रिवर्स आप पानी में डालते हैं, तो सर्टन स्पीशीज ऑफ फिश जो उस पानी में थी, उनको वो केमिकल हिट करके ख़त्म कर देता है। तो आप कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 20 किस्म की फिश खा सकता था, अब मैं 19 टाइप की खा लूँगा। ऐसा है या नहीं है? नहीं है। अगर मैं इंक्लूसिव हूँ, तो मुझे समझ आ जाएगी, इफ टुडे इट इज़ दैट स्पीशीज़ ऑफ फिश दैट हैज़ बीन वाइप्ड आउट, और दैट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल दैट इज़ वाइप्ड आउट फ्रॉम द प्लैनेट, नेक्स्ट इज़ मी। प्लैनेट की हेल्थ खराब हो रही है, तो इवेंचुअली मी, माय फ्यूचर जनरेशंस, दे विल आल्सो face the same doom that certain species of animals, fish, or any of the creator's creation is suffering. तो ये है जो है इंक्लूसिवनेस का एक डेफिनेशन, एक एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द कोट फ्रॉम बुद्धा कि बुद्धा कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हमारे पास समय है, एंड हमें पता है, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, हमें पता है कि शायद द क्लॉक इज टिकिंग एंड समवेयर वी आर नॉट राइट इन आवर एक्शंस, इन आवर कंडक्ट. We have the awareness but not the practice of it, because we think that हमें तो इफेक्ट नहीं कर रहा, तो बाद में होगा, तो इट इज़ फार, अभी बहुत दूर है, जबकि ऐसा शायद नहीं है. इट इज़ द एंड, और द जो भी हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमें मिलना चालू हो गया है. इट्स थोड़ा सा भी कम, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल इंक्रीज. एक्चुअली तो बहुत हो रहा है, हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। वी ऑल आर डाइंग एवरी डे, Oh, द सेल्स ऑफ द बॉडी beautiful. आर डाइंग ऑल द टाइम in a certain period of time, very short, पता नहीं 40 दिन होते हैं, 50 दिन होते हैं, कितना होता है, every cell in my body that is throbbing with energy today Yes. would have died and new cells would have come in. So in a way we are dying all the time. But are we living responsibly? Are we living with awareness of our mortality? हम जीते तो ऐसे हैं जैसे हम immortal हैं, कभी नहीं बना. और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोग अभी इमेजिन, मैंने अब, सो बेसिकली व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, आई वाज डूइंग माय फाइनेंशियल प्लानिंग, and I created a black folder in my house, and I called up my lawyer कि I want my will to be made. बहुत initial stage पे कर रहा था मैं ये सब, तो he got concerned कि what are you suicidal or something. मैं कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, life is very unpredictable, so one can go at any age, and for that your family needs to be prepared and everything. मैं कहा it's just a protocol that I want to follow a system which my family can take over after I'm gone, so that whatever I've earned, they can have it and live a peaceful life. I also discussed this with my mommy, and she is always like, ये सब मत करा कर, this is pointless. But कि ऐसा नहीं है, death can happen any day and to anyone, any time. So we need to be prepared for that.
एंड अगर हम ऐसा सोच के चलेंगे कि हम लोग जाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू लीव दिस प्लैनेट एट एनी मोमेंट, मे बी वी कैन लीड अ बेटर लाइफ Always. समटाइम। This is the right way. Be aware of your mortality. It doesn't mean you're in a hurry to leave this planet. राइट, राइट। I openly talk in public forums that I'll be going 6 feet under from soil to soil smokelessly. And I rush to say that I'm in no hurry to go. So it doesn't mean I want to go if I'm preparing a will, for example. It's a good thing to do. It's like thinking proactively rather than thinking reactively. राइट। पहले से ही हर चीज हर एस्पेक्ट को प्लान करके जितना चले उतना अच्छा है। सर जब बिजनेस सब सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, उस समय व्हाट चेंज्ड, व्हाट मेड यू शिफ्ट इनटू द, व्हाट मेड यू क्लोजर टू नेचर? मेरे को नेकचंद जी मिले, 19 साल का था मैं, तब पहली बार उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट प्लीज फॉर द ऑडियंस, हु इज नेकचंद जी एंड थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड। नेकचंद जी ने चंडीगढ़ में एक मॉन्यूमेंट बनाया था, रॉक गार्डन उसको कहते हैं, और उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था रॉक गार्डन बनाने के लिए। एक बहुत सिंपल रोड सुपरवाइजर होते थे वहाँ, ओके। और एज अ सुपरवाइजर जब वो सारे शहर में निकलते थे, इंडस्ट्रियल एरियाज में निकलते थे, जैसे कोई पोर्सिलेन की फैक्ट्री है, वो टाइल्स, WCs ये वो बनाते हैं, जो उसके टूट फूट होती है, जो प्रोडक्ट बना है उसकी, वो फैक्ट्री यार्ड के पीछे फेंक देते हैं। अब सरकारी ज़मीन में किसी ने पीछे WC टूटी हुई, बल्ब्स टूटे हुए, कोई चीज़ फेंकी है, तो नेकचंद जी एज अ रोड इंस्पेक्टर उनको पता रहता था पीछे एक जंगल है, वो ना सरकार यूज़ कर रही है, ना किसी की प्राइवेट ओनरशिप है। उसने उस जगह, उस जंगल में उन्होंने, जैसे टार के ड्रम्स होते हैं, जब रोड बनती है टार यूज़ होती है, उसके ड्रम्स में आती थी पहले, ओके। तो वो सरकारी रोड डिपार्टमेंट के ड्रम्स हैं, वो एक जगह जंगल में उन्होंने ढूंढ ली, उसमें ड्रम्स लगा लगा के उनकी बाउंड्री बनानी शुरू कर दी, और कई एकड़ में उन्होंने एक तरीके से अपसाइकल्ड ड्रम्स की बाउंड्री वॉल बना ली। और फिर ये टूटे फूटी पोर्सिलेन वगैरह मिली, टूटे बल्ब होल्डर्स मिले, उनकी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाने लगे, पेड़ लगाने लगे। मैं चंडीगढ़ फादर के साथ बिजनेस के लिए गया, तो मेरे को रॉक गार्डन, क्योंकि वहाँ का मॉन्यूमेंट था, देखने के लिए ले जाया गया, तो उनसे मुलाकात हुई। एक स्टेज पे कुछ सालों के बाद जब मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा, खूब पैसा आने लगा, तो मेरी एक ड्रीम बन गई कि एक दिन मैं ज़मीन खरीदूंगा, अच्छी बड़ी ज़मीन, और उसमें फार्म हाउस बनाऊंगा, और नेकचंद जी से इंस्पिरेशन लूंगा, मदद लूंगा, भी इसमें पेड़ कैसे लगाऊं, इसमें वेस्ट टू वेल्थ जैसे कहते हैं, वेस्ट से ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्ट बनाते हैं, जो उन्होंने किया हुआ है, कुछ वो करूंगा। तो ये मेरी ड्रीम बन गई। एक ट्रिप पे जाके उनको मैंने बोला मेरी ये ड्रीम है। अब इतने मेरे से 30-35 साल उम्र में ज़्यादा, इतने मशहूर पद्मश्री, रोज़ 5,000 लोगों को मिलते हैं जो विजिटर आते हैं रॉक गार्डन में, तो मेरी बात एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। कार्ड अपना मैं दे के आ गया, और एक दिन ऐसे ही कनॉट प्लेस दिल्ली ऑफिस में बैठा हूँ, दरवाज़ा नॉक नॉक हुआ, नेकचंद जी खड़े। मैं तो शॉक्ड हो गया, और फिर उनसे बात हुई, कहते हैं आओ, तुम्हारे पास कौन सी जगह है, तुम कह रहे थे तुमको बहुत सुंदर पेड़ लगाने हैं, लैंडस्केपिंग करनी है, दिखाओ मेरे को, चलो। तो वहाँ से मेरी दोस्ती उनसे शुरू हुई। उन्होंने वसंत कुंज में मैंने फार्म हाउस लिया था दिल्ली में, वो कैसे पेड़ लगाए जाएं वो और मैं लगे लगाने। शुरू में 100% सारे पेड़ मर गए, क्योंकि बहुत इनफर्टाइल जगह थी, ईंटों का भट्टा था पहले, सारी फर्टिलिटी सॉइल की ज़ीरो हो चुकी थी भट्टे में, तो सारे मर गए। फिर मैंने मेहनत करी, कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। ब्रिक किल जहाँ ईंटें बनाई जाती, अच्छा, ओके। सॉइल को पका के ईंटें बनाई जाती हैं, उसको ईंटों का भट्टा कहते हैं। ओके, ठीक। तो ब्रिक किल इन इंग्लिश। तो दैट वाज द लैंड आई बॉट टू मेक माय फार्म हाउस इन फर्टाइल सॉइल। तो फिर
पेड़ लगाने शुरू किए, शुरू में मर गए, फिर सॉइल को रिवाइव करना, कैसे करना, खाद डालनी, रेत डालनी, वो उनसे देखा, सीखा, समझा। और फिर जब फर्स्ट लॉट ऑफ सर्वाइविंग ट्रीज 6 महीने साल बड़े हुए, तो ऐसा लगा जैसे अपने बच्चे को बड़ा होते दिखते हैं। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा मैं मूव हुआ। उसकी वजह से फिर मैंने एक टाइम पे डिसाइड किया मेरे को हर साल 10,000 पेड़ लगाने, 1 लाख पेड़ लगाने अगले 10 साल में। और मैंने फिर फ्रेज किया, ग्रीनिंग लाइक चैरिटी शुड बिगिन एट होम बट नॉट एंड देयर। वाओ! तो घर में पेड़, फार्म में तो लगाए थे और लगाता रहा। और फिर को जब भी मैं दिखाता था कि कैसे पेड़ चल रहे हैं, अच्छे हैं, तो कहते थे तुम्हारे पास तो ठीक ठाक पैसे हैं और बड़ी जगह लो, तुम्हारा दिल बहुत छोटा है, इतनी जगह लेके ही खुश हो गए हो। तो मेरे को वो सार्केज्म, पॉजिटिव सार्केज्म से प्रॉड कर करके उन्होंने इतना पुश किया कि मैं कभी 25-50 एकड़ जमीन लेके उनको कहता था मैंने इतनी जमीन ली है अंकल, बहुत छोटे दिल के हो, थोड़ी बड़ी बात करो, बड़ी सोचो। वाह! फिर हालांकि खुद रोड इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कभी बड़ा पैसा नहीं देखा था, लेकिन उनका जो विजन था बहुत वास्ट था। वो मेरे को पुश करते रहे। वो उस पुशिंग से ये इफेक्ट हुआ कि मैंने कर्मा लिखना जो आज 270 एकड़ का 10-20 हजार करोड़ रुपए के बिजनेस का लैंड होल्डिंग है, वो उनकी प्रॉडिंग, पुशिंग, सरकाज़म, पॉजिटिविटी की वजह से पेड़ लगाने के लिए शुरू हुआ था और आज प्रोजेक्ट बना है। वाओ! सो ब्यूटीफुल। आई रियली लाइक द फैक्ट कि उन्होंने आपने जो वर्ड इस्तेमाल करा पॉजिटिव सरकाज़म। अगर हम किसी को भी कोई ये कर सकते हैं, जनरली हम लोग सरकाज़म को यूज़ करते हैं नेगेटिविटी से, नेगेटिविटी से, बिल्कुल। पर अगर हम पॉजिटिविटी से इसको करें तो इट कैन रियली हैव गुड इम्पैक्ट। यस, यस, दिस इज़ माय पर्सनल लर्निंग फ्रॉम दिस दैट्स राइट। और दूसरी चीज ये भी है, इफ समबडी इज बीइंग सार्कास्टिक विद मी, आई कैन टेक इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, नेगेटिवली, वेरी ट्रू। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ यू टेक इट। हाउ आई टेक इट। राइट। I can become bitter or better सर, हाउ डू यू हैव सो मच पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ इवन दो गोइंग थ्रू अ लॉट? because I love myself. If you love yourself, you will always have a positive attitude in life, isn't it? If I have a negative attitude, आपने मेरे को तो कह के बोल दिया, आपने मेरे को गाली करके दे दी, आपने मेरे से पैसे बोरो किए, वापस नहीं किए टाइम पे, और मेरे फ़ोन लेने बंद कर लिए, ठीक है? तो अगर मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, तो मैं तो सड़ता-कुड़ता ही रहूँगा ना। आई विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उसको भी पॉजिटिव एंगल से ले लूँगा कि पुराने जन्म का कर्जा देना था, दे दिया होगा शायद, या अगले जन्म में इससे वापस ले लूँगा। तो ये तो मेरे हाथ में है ना। अग अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो ही नहीं सकता। ये मेरा मानना है। वेरी ट्रू, उसको होना ही पॉजिटिव पड़ेगा। वेरी ट्रू। अक्सर हम लोग इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, वी टेक इट द ईज़ियर पाथ व्हिच इज़ अ नेगेटिव पार्ट। My favorite line is love of the self is the greatest romance on earth. ओह वाओ! लव ऑफ द सेल्फ इज़ द Greatest romance on earth. earth. ओह वाओ! I'm I'm just loving myself by being what I am. What's wrong with that? And if you love yourself, you will always be positive. You'll never be jealous. You'll never be unmanageably angry. I'm not saying you become God, but start walking the path. Be as positive as you can, despite this world being the space that it is. All kinds of people, it's full of negativity, I know it. But you be the change that you want to see See in the world. in others in the world. And I think when you start acting or even thinking with negativity, आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, होंगे। नेगेटिव चेंज होते हैं। और जी। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव, आई थिंक दिस इज व्हाट ऑल मेडिटेशन इज ऑल अबाउट, लाइक Yes. getting your focus in one place and be more mindful. Do you do meditation by the way? रोज के 1-2 घंटे की मेरी इनर इंजीनियरिंग सदगुरु से जो मेडिटेशन, योगा, अति योगा, कॉम्बिनेशन, चैंटिंग सब सीखी थी, मेरी रोज की साधना है। ओके।
Great. And since you mentioned planting trees, sir, so I believe अगर किसी को भी environment या nature के close जाना है, he or she should start from planting a tree. एब्सोल्युटली। इससे भी एक चीज और हमने कई साल पहले देखी, अगर आप एक फ्रूट खाते हैं, उसके बीज को आप संभाल के रखिए, सुखा लीजिए और कहीं भी लगा दीजिए। आपको लगाने की जगह नहीं मिलती है, पीपल बाबा जैसे कई लोग हैं, पीपल बाबा भी हैं, भी देता है। उनको भेज दीजिए, वो उसका अपने आप सैपलिंग ट्री बना के सोशल फॉरेस्ट्री कर लेंगे। हमारे कर्मा लेक लाइन्स के 5 रेस्टोरेंट्स में जब भी कोई फ्रूट सीड्स होते हैं, वो वेस्ट रेगुलर वेस्ट में नहीं जाते, अच्छा, okay. उनको एक अलग बिन में डाला जाता है। उस बिन पे लिखा हुआ है फ्यूचर ट्रीज, Wow. और वो सारे बीज आम के हैं, जामुन के हैं, ऐसे बहुत सब्जी फ्रूट के बीज हैं, वो अलग बिन में जाते हैं 5 रेस्टोरेंट्स में। सारे रेजिडेंट्स हमारे जो कर्मा लिखलेंस में रहते हैं, मेरे अपने घर में, ये सेग्रीगेशन होती है। मतलब ये सिंपल सेग्रीगेशन नहीं है जो आजकल बात होती है, वेट एंड ड्राई ना। वेट के इतने डिफरेंट सेग्रीगेशंस हो सकते हैं। तो जैसे एक सेग्रीगेशन होता है सिट्रसेस फ्रूट्स का, नींबू के छिलके, आपके मौसमी के छिलके, संतरे के छिलके, उसके बायो एंजाइम बनते हैं, जीवामृत बोलते हैं उसको। और उस जीवामृत से आप झाड़ू पोछा लगाने का बहुत अच्छा लिक्विड बना सकते हैं, और आपको केमिकल क्लीनिंग एजेंट्स यूज नहीं करने पड़ेंगे। तो पेड़ लगाइए, बीज गिफ्ट कर दीजिए किसी ट्री प्लांटर को, या खुद उसका सैपलिंग बना के सैपलिंग कहीं लगा दीजिए। तो जो कर सकते हैं, आप छोटे से फ्लैट में रहते हैं, उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। 10-20 पौधे रख लीजिए, अपनी किचन वेस्ट की खाद बना लीजिए। आजकल तो इतनी सिंपल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप अपनी बैल्कनी में भी खाद बना सकते हैं, किचन वेस्ट की स्मेल भी नहीं आएगी। और हमारी तरह लार्ज स्केल अगर आपने बनानी है, कर्मा लिखलैंड में 1600 किलो रोज की हर प्रकार की बायो वेस्ट है, जिसके खाद बनाई जाती है। फ्रूट वेजिटेबल के छिलके हैं, हमारे पास 100 से ऊपर गाय और बैल हैं, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, उनको ग्रास क्लिपिंग्स, किचन वेस्ट, जो भी है, फ्रूट वेजिटेबल पील्स, सब खिला के कहते हैं कृपया खाद बना दीजिए। सो वी हैव बीन पार्ट ऑफ द सेव सॉइल मूवमेंट ऑफ सदगुरु। कार्बन कंटेंट सॉइल में कम हो रहा है, इसलिए प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो आप उगाते हैं धरती में, आज से 150 साल पहले जितने उनमें न्यूट्रिएंट्स होते थे, अब 10-20% ही रह गए। तो वो रियलाइजेशन है, उसके लिए हम हर रोज काम करते हैं यहाँ पे। Sir, how did you met Sadhguru? बस एक नीमराना में कोई 2005 में उनका इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो रहा था। Inner engineering. हाँ जी, I think okay, I'm Inner aware about engineering this. नाम Yes, से। yes, yes. आजकल तो ऑनलाइन सिखाते हैं। हाँ, my mommy has taken this program. अच्छा अच्छा, हाँ जी, and she has recommended me, तो I could recall the word inner engineering. आजकल तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, और बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, लाइफ चेंजिंग है। Okay. एंड उन दिनों वो खुद कराते थे। जब मैंने किया था तो 25-30 लोगों का एक छोटा सा इंटीमेट ग्रुप था। सदगुरु हमारे साथ 4 दिन, फुल 4 डेज, सुबह उठने से लेके सुबह 5-6 बजे उठा देते थे हमें, रात को 9, 9:30 से पहले छोड़ते नहीं थे। खाना पीना कंट्रोल्ड है, क्या खाना है सब वो सदगुरु खुद डिसाइड करते थे। योगा, लाइफ फिलोसफीज, चैंटिंग, सारे एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म के, वो 4 दिन उन्होंने सिखाया। इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के It's a 4-day program? यस। Can you walk me through a basic of the program? क्या सीखने को क्या मिलता है, क्या चेंज होता है? स्टार्टिंग क्या होती है, मेरे हिसाब से 1.5 दिन तो उन्होंने एक ही चीज सिखाई हमें। उसका टाइटल था आई एम रिस्पॉन्सिबल। और अब जैसे कोई भी चीज, मैं खुश नहीं हूँ, क्यों नहीं खुश? मेरी बीवी ने रात को मेरे से हंस के बात नहीं करी, डांट लगा दी, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे
मेरी खुशी की जिम्मेवारी तो मेरी है। किसने आपको कहा था अपनी बीवी के हाथ में दे दो या वेरी अपने ट्रू। किसी और आदमी के हाथ में दे दो? इफ somebody is been not nice to you, rude to you, you blame them for your unhappiness. No, I am responsible for my happiness and I am responsible for my unhappiness. Do not give these controls out to anybody. Not to your wife, not to your mother, not to your teacher, not to anybody. Your happiness and your unhappiness, you should control it. This is your responsibility. My mommy says the same thing, and I know हम दोनों को सदगुरु ने सिखाया है। yes, I was about to say this. My mommy says ये the same मैं thing. सीख के नहीं आया था। जी Okay. जी। And what और क्या तो होता है इसमें? तो आई एम रिस्पॉन्सिबल सिखाएंगे, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग सिखाएंगे, क्योंकि अगर अ हेल्दी माइंड शुड बी हाउस्ड इन अ हेल्दी बॉडी। Wow. एंड आज आपके दांत में दर्द है बहुत, और मैं कहता हूँ आओ जी योगा करें। आपका योगा में, ध्यान में, चैंटिंग में, किसी भी चीज में दिल लगेगा नहीं लगेगा? नहीं, सारे ध्यान दांत पे दांत में है। सेम थिंग, अगर बॉडी हेल्दी है तो ही आप योगा, मेडिटेशन बेहतर कर पाओगे। तो बॉडी फ्लेक्सिबल है, बॉडी सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, आपके पोस्चर करेक्ट हैं, आप फ्लेक्सिबल हो, तो वो चीज़ वो उसमें कराते हैं। और इवेंचुअली एक पर्टिकुलर मंत्रा चैंट, जैसे ओम चैंट है, ओम चैंट या कुछ और चैंट्स कहते हैं, इस चैंट का मीनिंग क्या है इसमें मत जाओ। Okay. इसके अंदर सर्टन कॉन्सिक्रेटेड साउंड वाइब्रेशंस हैं जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स, हैप्पीनेस जनरेट करेंगे। दिल मेक यू अ जॉयफुल ह्यूमन बीइंग। तो ये पूरा 4 दिन का पैकेज है। इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग मैं सिखा तो नहीं सकता, Of course. Yes. पर मेरे पर्सनल बेनिफिट की बात करूं तो ये बता सकता हूं कि एक मेरी लाइफ में 18 मंथ्स का पीरियड था। मेरे 2 बच्चे गुजर गए। एक मैरिज जिसको मैं बहुत ज़्यादा ट्रेजर करता था वो टूट गई, वाइफ छोड़ के चली गई। मेरे इनकम टैक्स रेड्स हुए, मेंटल स्ट्रेसेस आए, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई कि मेरे को 3 हफ्ते जेल में डाल दिया गया। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, लेकिन मेरी स्पिरिट नहीं टूटी। जो मेरी अंदर इंटीरियरिटी है वो तब भी पॉजिटिव एंड प्लेजेंट रही, मुस्कुराती रही। मैंने उन दिनों अपनी योगा, मेडिटेशन और ज़्यादा स्केल अप कर दी। बस यही था। सो इनर इंजीनियरिंग का, पॉजिटिव थिंकिंग का, इंक्लूसिवनेस का फ़ायदा ये होता है, यू आर नॉट बिटर। किसने क्यों आपको झूठा केस बना के जेल में भिजवा दिया, आप उसके बारे में सोचते हुए बदला कैसे लूँगा कंज़्यूम हो जाएँगे, या उसमें भी पॉजिटिविटी ढूँढ सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है। सो ये मेरा टेस्ट आया था, पास हो गया था। I love the perspective you have, sir, on things. I love it. मतलब, it's very positive. It's, to be honest, very, very positive. Can you walk us through the 18 months period? What happened from the beginning? In a certain car accident, 2 children died, and then a few months later, the wife says her mind, in continuing with status quo, changed, and she says, "I want to be traveling for a year. No questions asked. Who am I with? Where am I going? बस आपको खर्चा करते रहना है, जहाँ मैं जाऊँ जो करूँ। मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को डिवोर्स चाहिए।" मैं उनको इबादत जैसा, इबादत से ज़्यादा प्यार करता था। तो मैंने कहा जी जाइए आप साल भर घूमिए। और कुछ महीनों के बाद उनको एक बॉयफ्रेंड मिल गए और इवेंचुअली डिवोर्स हुआ। और पेनफुल था, बहुत पेनफुल था, लेकिन फिर भी हर चीज़ में आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं, एटीट्यूड की बात है। मैंने कहा ठीक है, आई एम गोइंग टू से व्हेन शी केम इन माय लाइफ दैट एक्चुअली वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, and certain number of years later when she left, that was another best time, because there was a time for her to go. Because if she had not gone, I would not have been any longer happy or spiritually evolving, growing. और ये ना केवल मैंने कहा, मैंने फील किया। उनका जाना मेरी जिंदगी से मेरे बेस्ट
पार्ट ऑफ माई लाइफ था, क्योंकि नया चैप्टर उससे भी बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था, और ना केवल एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्चुअली अनफोल्ड हुआ। इनकम टैक्स के रेट्स होते हैं, आपके सोफे फाड़ के भी देखते हैं, यहाँ तो नहीं नोट छुपा रखे, दीवारें भी कहीं तोड़ के देखते हैं, इट्स ह्यूमिलिएटिंग। एंड ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई मिस इन्फॉर्मेशन है जो भी है करने दीजिए, ठीक है। सो ये मेरे इंटरनल एक्सपीरियंसेस रहे चैलेंजिंग टाइम्स पे। Why did the jail thing happen, sir? इन द लॉटरी बिजनेस आई हैड पार्टनर्स, वी वर 5 of us। तो लाइफ में मैंने एक चीज देखी है कि जब किसी को आप बहुत अच्छा करते हैं, जो दुनिया चल रही है आज, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं आज, तो वो शुरू में ग्रेटफुल होता है, लेकिन आप करते रहिए अपना, उनको सपोर्ट करना, अच्छे से ट्रीट करना, आप देखेंगे एक टाइम आएगा वो अपने आप ग्रेटफुल की जगह थैंकफुल पे आ जाएंगे। Okay. और थोड़ा उनकी एनर्जी जो पहले ग्रेटिट्यूड की थी, अब थैंकफुलनेस पे आ जाएगी। कुछ और देर बाद आप करते रहिए, वो थैंकलेसनेस पे भी आएंगे, ये तो मेरा हक था, इनका तो मेरे को हेल्प करना धर्म था, ड्यूटी थी, ड्यूटी थी। थैंकलेस के बाद एक दिन आएगा वो हार्मफुल पे भी आ सकते हैं, कि जो मेरा हक था उससे तो कम कर रहे थे। उस दिन इन्होंने मेरे को अच्छे से हंस के बात नहीं करी, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को पार्टनर बना के करोड़पति बना दिया, Wow. मेरी इज्जत तो करोड़ों से कहीं ज्यादा है, उसको खराब कर दिया, ये उनका पर्सपेक्टिव है, आपने इस इंटेंट से नहीं किया होगा शायद। Right. मेरे बिजनेस में मेरे पार्टनर्स थे, उम्र में सारे मेरे से बड़े थे, लेकिन क्योंकि मैं प्रोग्रेसिव था, मॉडर्न था, मैं दुकानदार मेंटालिटी से कॉर्पोरेट मेंटालिटी की तरफ बिजनेस को ट्रांजिशन कर रहा था। You were young also, so you I have. was young, I was thinking differently. So these older partners of mine, I don't blame them. They were disgruntled that मेरे को आज भी याद है, जो पहला एम्प्लॉय मैंने अपनी कंपनी में रखा, जिसको कंपनी पैकेज के अंदर एक कार दी गई थी, तो पार्टनर्स का बहुत बड़ा बवाल हुआ। डायलॉग क्या था, अब तो हमने गाड़ियां बांटनी शुरू कर दी हैं। वो सोच ही नहीं सकते, एक एम्प्लॉय आप रखेंगे, उसको एक गाड़ी दे रहे हैं, वो आपकी कंपनी को अगर अच्छा एम्प्लॉय होगा 10 गाड़ियां कमा के देगा और अपनी गाड़ी को जस्टिफाई करेगा। वो सोच ही नहीं सकते थे, अब तो हमने गाड़ियां बांटनी शुरू कर दी। तो ऐसे गाड़ियां बांटने का इल्जाम था मेरे पे। जब डीलर्स ऑल इंडिया बिजनेस ग्रो किया, वो मिलने आते थे, और जो चीज़ मैं बेच रहा था उसकी स्कैर्सिटी थी। अगर मेरे पास 100 सिक्किम लॉटरीज की टिकट्स हैं सप्लाई करने के लिए और 200 की डिमांड है, तो ये तो हमारे फादर मजाक करते, तो ये तो अफीम की तरह बिकती थी। और जब डीलर्स हाथ जोड़ के आते थे, मेरा सप्लाईज कोटा बढ़ा दीजिए, तो ऑफ ऑल द पार्टनर्स वो मेरे को ढूंढते थे, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता था, 14 घंटे दफ्तर में काम करता था, दिन में ट्रैवल करता था 18 दिन महीने में, फैमिली को छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के। तो जो मेरे को अटेंशन मिलती थी, 28 साल की उम्र में इंडिया हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर Yes. होने से मीडिया अटेंशन, मीडिया लव मिला, तो समहाउ डाउन द लाइन इनको जेलसीज हो रही थी। और 20 साल अच्छा चलने के बाद जिस दिन बिजनेस खत्म हुआ, तो जी ये कंपनी में बैड डेट्स क्यों हो गए थे, ये तुमने ध्यान से काम नहीं किया था, तो जितने बैड डेट पिछले 10-20 साल के हैं सब तुम्हारे नाम पे डाल देंगे, आपको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके देने पड़ेंगे, क्योंकि डाल दिया आप उन्होंने? केयरलेस थे। और अरे अगर बिजनेस ही उधार का बिजनेस है, Right. 100 में 100 रुपए तो रिकवर नहीं होते, Right. सबको पता था, सबको पता है। बट जेलसीज, एंग्स्ट, ये डीलर्स में हमें अलो करने ही नहीं आते, इसी को जाते, ये उनको कहता ही नहीं है, वहां भी जाके सलाम मार के आओ, मेरे से 10 साल बड़े हैं वो। तो ये काम के जुनून में मैटर ऑफ फैक्ट हो जाती है सिचुएशन, ये चीज़ें इग्नोर हो गई, गलती हो गई, तो लेकिन इतना बड़ा बवाल बने कि इसको क्रिमिनल केसेस में ट्रैप किया जाए, इसको बैड डेट्स कहने की जगह ये कहा जाए इन्होंने जान के बैड डेट दिए, हो सकता है पीछे से उनसे पैसे ले लिए हों, जिन लोगों ने हमारी कंपनी के पैसे उधार लिए हुए थे नहीं वापस किए, हो सकता है पीछे से इसने कुछ ले लिए हों, उस टाइप के इल्जाम बनाए, और करप्ट सिस्टम में किसी को भी फंसाया तो जा सकता है।
लॉन्ग टर्म नहीं तो शॉर्ट टर्म एक झूठा केस तो बनाया जा सकता है, हो सकता है बाद में कोर्ट आपको छोड़ भी दे, लेकिन सफरिंग तो वो तो सफरिंग तो पॉसिबल है ना। सदगुरु का क्या कहना है, पेन माइट बी इनएविटेबल, आपको चोट लगी है, दर्द तो इनएविटेबल है, सफरिंग इज योर चॉइस। आपके किसी ने पैसे मान लिए, नुकसान हो गया, लेट अस कॉल इट पेन, बट सफरिंग तो आपकी है। आपके पास इनफ पैसे थे, आप तब भी अपना सारी जिंदगी जीत सकते थे, लेकिन आप कुटते रहते हो, सड़ते रहते हो, उसको कर्स करते रहते हो, तो सफरिंग अपनी तो आप बनाते हैं ना। उसने तो थोड़े से पैसे लिए थे, आपकी एक बाल्टी पानी में से एक लोटा लिया था, बाल्टी में पानी तो अभी भी बहुत है। so basically pain is not something you choose, but suffering is This is your something that you choice. choose. And if you do not have a positive, correct attitude, pain will translate to suffering. Otherwise, pain will remain pain only. It will end there. It will end there. देखिए, ठीक है, हो गया। क्रॉस हील हो जाएगा, लेकिन सफरिंग तो आप बिकॉज ऑफ योर नेगेटिविटी यू क्रिएटेड टू योर The ability to not let it go. Yeah. Not let it सदगुरु बहुत बड़ी कहते हैं, ये जो सफरिंग होती है ये क्यों होती है? बिकॉज योर माइंड इज नॉट लिसनिंग टू यू. If your mind is listening to you, would it create positive thoughts or negative thoughts? But am I not my mind, sir? If it's not No. listening to me. No, Sadhguru clearly says, I'm neither the mind nor the body. So I am not both of them. I am different. I am the soul, I am the consciousness, I'm different. I'm not the mind and I'm not the body. There's a meditation, Sadhguru, a 7-minute meditation titled Miracle of Mind, Okay. which actually makes you aware that you're neither the mind nor the body. And the moment you start to resonate with this, you will realize you will be a joyful being and your interiority will be pleasant, and your interiority will be unrelated to your external life challenges. You will never allow pain to translate into suffering. Do you think for किसी भी इंसान के spiritually growth में pain is inevitable? ह्यूमन हमारे ह्यूमननेस का पार्ट है, पेन तो आनी है. लाइफ, डेथ, लॉसेस, सेटबैक्स, Failures, everything. दिस इज बाय डेफिनेशन दिस इज लाइफ. तो ऊपर वाले ने कहाँ कह के भेजा था मैं आपको जॉयफुल हमेशा रखने के लिए भेज रहा हूँ. हाँ, जॉय आपकी चॉइस है, सफरिंग के बावजूद भी आप जॉयफुल हो जाओ, दैट्स अ चॉइस यू मेक. True. Very true. Sir, while we were taking a tour of this place, we met somebody वहाँ पे बाहर, and he said कि आप लोग जब बात कर रहे थे, अभी जब आपने बिजनेस का जिक्र करा कि आपने किसी को गाड़ी गिफ्ट करी और it was taking in a wrong direction. This also happens with me in my partnership as well कि if I'm doing something for Ashu, so the rest of the two boys will say कि why are you doing so much for them? So मेरा भी मानना ही रहता है कि ठीक है, अगर आप इनके लिए करोगे तो ये हमारे लिए करेंगे, इनएविटेबली वो करेंगे. इट विल कम बैक टू अस इन मल्टी फोल्ड्स, राइट? इफ यू कीप योर टीम हैप्पी, you stay happy, your business stays thriving. But many of the entrepreneurs these days tend to lose that mark, right? So आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? What are the mistakes that we as entrepreneurs या businessmen do in terms of keeping a good relation with our team and Let's not say entrepreneurs, we as humans. Right. better? बात एक ही है. Yes, Right? better. See, एक सिंपल चीज मैं अपने सारे स्टाफ को कहता हूँ, खुद प्रैक्टिस करता हूँ. हर रोज एक नए आदमी का नाम आप याद कर लीजिए. दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ क्रिएटिंग अ मोर लविंग वर्ल्ड, अ हैप्पियर वर्ल्ड. रोज एक आदमी नए का नाम याद करना है, उसको नाम से बुलाइए. अगर आज मेरे यहाँ 1000 लोगों का स्टाफ है, 1000 के नाम नहीं है, लेकिन मैं रोज कोशिश करता हूँ किसी का नाम याद करूं. अब होता क्या है, जिसका नाम याद करोगे उसको नाम से पुकारोगे, पॉजिटिव एनर्जी से एड्रेस करोगे, दिस लव इज गोइंग टू कम बैक टू यू 100%. बट अनदर 100% इज कमिंग बैक
to my guests, my visitors at Karma Lens. तो 200% आ रहे हैं. Question is, did I do that to get them to work happily and better for me? Or did I do that because I am love? Wow. If I am love and I'm doing it anyways out of my humanness in a genuine way, then 200% will come. But if I'm doing it because I want better work out of him, they are intelligent people. They are not fools. They read energies. Yes. कि मेरे से काम ज्यादा लेना चाहता है इसलिए हंस के बोल रहा है. Yes. तो first of all, you have to be true. You have to be genuine. Very true. Truth is paramount. And हमारे यहाँ जैसे नाम से एड्रेस करने का रहता है, सबको कहा जाता है, वो सब कर रहे हैं. And such positive feedback we get from our visitors here, our customers here. Repeat visits happen because they say everybody is so caring, affectionate. वो नहीं कहता ये मेरे डिपार्टमेंट है. अब कर्मा लिंक्स कैंपस में कोई विजिटर आया, वो हॉर्न बजाते हुए आ रहा है. यहाँ पे हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है. आप सही बढ़िया से. हाँ जी. तो ना केवल सिक्योरिटी गार्ड्स, उस दिन मैं जा रहा था, मैंने एक लेडी गार्डनर को देखा. एक हॉर्न बजाती हुई गाड़ी आ रही थी, उसने हाथ दे के उस गाड़ी को रोक लिया, फिर हाथ जोड़ गए थे, सर आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते. अब इस लेडी की ना तो सैलरी बढ़ेगी इस वजह से, ना कोई अप्रिसिएशन मिलेगी, उसके बावजूद वो इसको अपनी जिम्मेवारी समझ रही है. इफ एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट दिस कंपनी इज माइन and there's a sense of belonging, then this company has no choice but to grow to super heights. Today, we have got to that because there's a sense of belonging by each one of the people in this company. One person alone can do nothing. True. Same thing applies to the world outside of us. अगर हर इंसान समझे कि ये धरती माता मेरी माता है, इसमें अगर मैं कूड़ा फेंक रहा हूं तो मैं अपनी माता का निरादर कर रहा हूं. इसमें मैं पान खा के थूक रहा हूं, यूरिनेट ऑन द रोड साइड कर रहा हूं, तो मैं इस माता का निरादर कर रहा हूं. अगर हर आदमी ये समझने लगे और अपने एक्शंस को उसके हिसाब से एडजस्ट कर ले, तो कितना सुंदर संसार बनेगा. उसमें प्रॉस्पेरिटी भी होगी, उसमें बिजनेस भी अच्छे होंगे, नौकरियां भी अच्छी मिलेंगी, हर आदमी खुश रहेगा. विल मेक इट अ हेवन. वो तो हमारे हाथ में है ना. Sir, after seeing a lot of success and then collapse and then rebuilding of new things, I'm sure कि आपका success को लेके perspective change हुआ होगा over the period of time with the life phases. What is it now for you? Success is leaving the planet a happier, healthier place than you got it. You may not be able to do it to the entire planet. Start with yourself. Right. Be healthy, be happy. Then your immediate circle. Your target is the entire universe to be included. And that's what it is today. And it does keep you happy despite the external challenges of life. True. पहले दूसरा होगा, बचपन में दूसरा होगा, पैसा कमाना है. Yes. फिर शोहरत कमानी है. आई वॉन्ट रिकग्निशन. वो मैस्लोज थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कहानी तो यूनिवर्सल है. हर एक को गुजरना पड़ता है, मैं भी गुजरा. बट हाउ यू ट्रांजिशन फ्रॉम pursuit of money to a larger purpose. Some people may not transition despite their 10,000 crores of wealth, despite them becoming 70 years old. There could be somebody else at 25 years old and he may not have even his 10,000 crores, but he is evolving into a self-actualized being. ये तो हमारे अपने हाथ में. It's very personal to each of the... Each one has a personal journey in life. And do you think कि आपके लिए सक्सेस क्या मैटर करती है या आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, वो हर एक इंसान को एक दिन बैठ के लिखना चाहिए अपने लिए? बिल्कुल. And then start walking that talk. Start walking the talk. बिल्कुल. बैठ के करो,
खड़े होके करो तो Just work on that direction. Can we really maintain, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं डूइंग अ बिजनेस एंड बीइंग कर्मा कॉन्शियस, राइट, seems very difficult. Can we actually do it? And if yes, then how? See, in life, there's one phrase I've often used: the end justifies the means. Okay, please explain. बहुत बारी दुनियादारी के हिसाब से चलना पड़ता है, Hmm. तो सेम अप्लाइज टू बिजनेस. Hmm. समटाइम्स यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, बट योर कॉन्शियस शुड बी क्लियर. जैसे एक हम स्टोरी सुनते थे, एक बुचर गाय को मारने आ रहा है, गाय टी पॉइंट से राइट चली गई, सामने बंदे को पूछता है कि आपने गाय को देखा था? हाँ जी देखा. तो उसे राइट की जगह लेफ्ट बता दिया गाय की जान बचाने के लिए. अब इस झूठ को एक तरीके से झूठ नहीं मानना चाहता. अब in practical business, in practical life, you have to lead by the need of the hour. अब बहुत बारी जैसे लिटिगेशन होती है, Hmm. किसी से भी कोई आपकी कॉन्फ्लिक्ट होने जा रही है, लिटिगेशन के चांस बन गए हैं, तो मैं बड़ा क्लियरली उनको कहता हूँ, देखिए लिटिगेशन क्या है, वो झूठ का मैच है. और आप क्रिकेट के रूल से खेलते हो, फुटबॉल के रूल से खेलते हो. लिटिगेशन जो है वो झूठ के रूल के साथ खेलोगे आप. कोई चारा ही नहीं है, दोनों को खेलना पड़ेगा. खेलिए फिर वैसे, झूठ का मैच तो फिर झूठ के रूल से ही खेलोगे ना. सो दैट्स व्हाट आई मीन टू से. समटाइम्स यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, बट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स. मेरी 1,000 करोड़ रुपए की वैल्यू की लैंड एक बहुत ही अनफेयर, अनरीजनेबल कोर्ट ऑर्डर, अनएक्सपेक्टेडली इमोरल ऑर्डर आ गया, और 1,000 करोड़ की वैल्यू थी उसकी, इस जगह की. इसी जगह में. Okay. मतलब उस दिन अगर इस कैंपस की वैल्यू 1,500 करोड़ थी, तो एक बुरा ऑर्डर इन लिटिगेशन, जब हम पार्टी भी नहीं थे, किसी और के लिटिगेशन में क्रॉस फायर में हमको ले लिया, इट वाज अनरीजनेबल. तो मेरे को 5 मिनट लगे इंटरनलाइज करने में कि आज हमारे की कमर्शियल वैल्यू अगर 1,500 करोड़ थी, तो 1,000 करोड़ का एक ये आया तो ले ले. तो अब फैमिली को मैं कैसे बताऊं? Hmm. तो दिमाग में बड़ा क्लियर आ गया, इस दुनिया को माया कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं. वेल्थ भी जो बनाई है, आप लेके तो आए थे नहीं और लेके जाओगे भी नहीं, तो माया है. तो मैंने फैमिली को ओपनिंग लाइन जब बतानी थी स्टोरी की, ये हुआ है, तो मैंने क्या बताया कि इतने 30-35 साल काम करके जो हमने 3 सैंड कैसल बनाए थे, रेत के 3 टीले बनाए थे, वो 2 फॉर सम रीजन चले गए, एक अभी भी है. सो 2/3 of the value created in so many years of work has gone. After all, it is illusion. It was a sand castle. रेत का टीला क्या होता है, तेज हवा चली वो जीरो हो जाता है. इल्यूजन है ना एक. तो कुछ लैंड ले ली गई. हाँ, ऑर्डर आया था अच्छा. इसमें से कोर्ट का, जिसमें एक मेजर ग्रुप हाउसिंग बननी थी, उसकी मेजर कमर्शियल वैल्यू थी, और उसको ले लेने का ऑर्डर था. ओके. और लकीली जैसा भी था, जो भी था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था. उसके बावजूद लिटिगेशन अभी भी चल रही है. हो सकता है हमें जस्टिस मिल जाए, Hmm. लेकिन इनजस्टिस मिलने के बावजूद मेरा क्या कहना था, 3 सैंड कैसल थे, 2 चले गए, एक है. तो जब आप समझ लेते हैं, आई एम नीदर द माइंड नॉर द बॉडी, whatever is happening to my mind and body is not happening to me because I am a third party, you look at things differently and you are never vain and bitter. But आपको कर्म तो करना ही है, and you have to play the game by the rules of the game. When I was the highest taxpayer in India, I was just 28. तो कई मेजर न्यूज़पेपर्स में, आई थिंक फाइनेंशियल टाइम्स या कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस था, उसके फ्रंट पेज में क्वेश्चन आंसर थे पूरे. इज इट पॉसिबल इन इंडिया टू लिव without managing the corruption, the black money situations, this, that? I said,
You talk to me 100%, it is not. It is not the dream country that one would want to live and work in. But then you have to practically navigate through twists and turns. What else can I say? There were times when you also had to go around the places and There have been situations in life. Yeah. You know, if somebody lies and takes you to litigation, and if you tell a certain truth, you don't have the evidence. So you counter lie. The end justifies the means. The end was honorable. You're protecting your truth. But the means, because the next thing is evidence, what to do. That's the way, that's the world we live in. Okay. मैं जब पीपल बाबा के साथ था तो आई वाज जब भी मैं कुछ किसी चीज़ के दौरान इवन ड्यूरिंग अ पॉडकास्ट भी मैंने उनको बोला कि आई वाज गोइंग थ्रू सम स्टफ ही सेड कुछ मत कर जूते उतार और घास पे जाके वॉक कर ले सिंपली राइट डू यू डू दैट ऑल्सो समटाइम्स टू कनेक्ट विद नेचर There's two things I'll share with you. Okay. At Karma Lake Lands, we have 10 points relating to golf course and golf course protocols with the heading that says 10 reasons that make us the world's most unique and India's most eco-friendly golf course. 10 reasons that makes Karma Lake Lands the world's most unique and India's most eco-friendly golf course. उसमें एक पॉइंट बेफिट गोल्फ है. हमने क्या किया है टू मेक गोल्फ एंड द कैंपस मोर एक्सेसिबल टू पीपल विद ऑल माइंडसेट्स. हमने गोल्फ के जो प्रोटोकॉल्स ट्रेडिशनल हैं कि आपको कॉलर्ड शर्ट पहन के गोल्फ खेलनी पड़ेगी, आपकी शर्ट टक्ड इन होनी चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, जूते प्रॉपर होने चाहिए, हमने सबको ऑप्शनल कर दिया. ओह नाइस. और सबसे इंटरेस्टिंग जो ऑप्शनल है वो है बेफिट गोल्फ. किसी गोल्फ कोर्स में आपको बेफिट गोल्फ खेलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो आप जेंटलमैन नहीं लग रहे. वो जेंटलमैन ओनली गोल्फ कहलाती है. तो कर्मा में आज से 2-3 साल पहले मैं सुबह सुबह आया, परेशान था, डर लग रहा था कि डिप्रेशन में ना चले जाऊं. इश्यूज थे लाइफ के. गोल्फ खेलने लगा तो ऐसे ख्याल आया, सदगुरु के आश्रम में जब हम जाते हैं तो जो इंटेंस मेडिटेशंस के लिए जाते हैं तो हमें कहा जाता है जितना हो सके आप इन दिनों नंगे पांव रहिए. बहुत तकलीफ है तो बात और है, अदरवाइज आप बेफिट रहिए. एट बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमारी सारी टेंशन वगैरह चली जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं. वो मुझे सुबह ख्याल आया. और हमारी जगह में एनीवेज कोई प्योरिटैनिकल प्रोटोकॉल्स हैं ही नहीं, हमने पहले ही अनाउंस कर रखा है. तो मैंने जूते निकाल के गोल्फ बैग में डाल दिए और बेयर फीट नंगे पांव खेलने लगा. कोई 3-4 किलोमीटर चलाऊंगा, 1.5 घंटा गोल्फ खेली, बहुत अच्छा लगा. अगले दिन भी किया, एक हफ्ता भर ऐसे किया. हफ्ते के बाद भगवान को कह दिया आई एम ऑल रेडी. जितने चैलेंजेस आपने ले आओ, आई एम ऑल प्रिपेयर्ड टू मीट देम. I was in exorbitantly, I would say I would be at a different energy level, exuberant as could be. And I was ready to, out of that exuberance, tell God, give me any challenges. I'm there to face. Barefoot, धरती माता से मैंने एनर्जी ली है. अब आप देखिए, तो आज भी हमारे गार्डनर्स वगैरह जो ज़मीन पे काम करते हैं उनके लिए ऑप्शनल है. गर्मियों के टाइम पे आपको ज़रूरी नहीं है बाबू बन के जूता पहन के ही सुपर प्रोफेशनल ब्रिटिश कंपनी में काम कर रहा हूँ ऐसी फीलिंग लानी है, ज़रूरी नहीं है. इफ़ यू वांट टू वर्क बेफिट यू आर वेलकम टू डू इट. मेरा अपना ऑफिस, अब मीटिंग्स में आते हैं, जूते बाहर उतारिए और धरती माता से जुड़िए. एक तो बिना फुटवेयर के जब हम कुछ लोग मीटिंग में बैठते हैं आपस में तो एनर्जी भाईचारे की होती है.
कमराडरी की होती है। मैं मैनेजर हूँ, आप सबॉर्डिनेट हो, ब्राउ बीटिंग एनर्जी नहीं होती है। इक्वल होता है। It's more collaborative. So when Dharti Mata is common to you and me, we are both here to work in this company and on this planet, whatever you call it. Right. We will work collaboratively as brothers, as equals. ठीक है, अनइक्वल्स तो होते हैं, एक मैनेजर है एक नहीं है मैनेजर, बट जहाँ तक जितनी क्वालिटीज ला सकते हो, एक ये बेफिट एनर्जी भी उसी में कंट्रीब्यूट करती है पॉजिटिविटी। Do you think we have forgotten this in our houses yeah. and everything? These were very much our traditional positive things which we have drifted away from. And here at Karma Listeners, we're trying to bring as many of them as possible. There is one thing that we brought in. Every employee, every staff member, including my 4-year-old granddaughter, must do one bending exercise a day minimum. Okay, you bend and pick up any piece of litter and put it in the bin. Okay. At least once a day. इससे क्या होगा, मेरा ऑलरेडी मैसेज चला गया, डू नॉट बी अ लिटर, आप कूड़ा मत फेंकिए। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं जब ये करते हैं, यू आर बेंडिंग योर बैक एंड यू आर बेंडिंग योर ईगो। अब ना अहम भी बेंड कर रहे हैं, अपनी कमर को भी बेंड कर रहे हैं, और जब आपकी अंदर आनंद आने लगेगा कि बिना किसी अप्रिसिएशन के, बिना किसी सैलरी इंक्रीज के, प्रॉफिट इंक्रीज के चाहत के मैं ये कर रहा हूँ, तो उस आनंद की वजह से आप दिन में 150 बारी करने लगोगे मेरी तरह। तो ये अब इस कैंपस में जाइए और किसी और कैंपस में हिंदुस्तान में चले जाइए, मेरी ऑलमोस्ट गारंटी है इतना क्लीन कैंपसेस कहीं नहीं मिलते। True, very true. Why? Because people are doing their bending exercise of the back and ego all the time, every day. हमने एक और चीज नोटिस करी सर यहाँ पे, जो हम बात भी कर रहे थे नमस्कार करने की, आप प्लीज वो शेयर करिए विद द ऑडियंस। हमारी कंपनी में जब नया क्लब खुलने जा रहा था, तो ये डिबेट चल रही थी कि स्टाफ ग्रीटिंग क्या करेगा विजिटर्स को। अंग्रेजी के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करेगा, सलूट मारेंगे गार्ड्स, नमस्कार होगा, क्या और ऑप्शंस हैं। तो एक सदगुरु का वीडियो मिल गया जिसमें उन्होंने बताया था कि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हर एक के अंदर, हमारे अंदर यिंग एंड यांग, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो एनर्जी बैलेंस हो जाती है, और बैलेंस एनर्जी में आप स्टेबल, पॉजिटिव, हैप्पी ह्यूमन बीइंग रह सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर वीडियो नमस्कार योगा का था। वो हमारी वोटिंग चल रही थी कि क्या ग्रीटिंग होनी चाहिए। जैसे ही मैंने वो वोटिंग जहाँ चल रही है उस ग्रुप में मैसेज डाला, उसके बाद हर एक का मैसेज आने लग गया, आगे से हम नमस्कार ग्रीटिंग के साथ हैं। और उसके फायदे देखिए, इतने रिपीट कस्टमर्स, इतने जॉयफुल रिविजिट्स ऑफ पीपल होते हैं। बिजनेस एक मुहावरे की तरह संभालने से नहीं संभल रहा, इट्स कमिंग बेटर देन वी could imagine, and we have challenges in handling the surge, the expansion that the business is watching today, whether it is our Shobha Aranya conscious living community project of apartments or hospitality or golf. Every dimension is rocking, is doing very well, और शायद कुछ इसका पॉजिटिव नमस्कार की एनर्जी पे भी क्रेडिट जाएगा। And sir, we also mentioned while we were taking the tour कि एक ऐसा समय आया था जहाँ पे सैलरीज देने के पैसे खत्म होने वाले थे। And how did you get over that period? एक तो पीपल बाबा से जब मैंने बताया एक दिन कि ये सिचुएशन है, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि अश्विनी जी आप वनस्पति से जुड़े हुए हैं, और जो वनस्पति से जुड़ा रहेगा उसको ये लाइफ चैलेंजेस आके चले जाएंगे, ज़्यादा देर उसको तकलीफ नहीं देंगे। आप मेरे से कहीं भी लिखवा लीजिए, आपके पैसे ख़त्म नहीं होने वाले। और एक्चुअली कैश फ्लोज कभी रुके नहीं, और इक्विटी को डाइल्यूट नहीं करना पड़ा, डेट्स भी नहीं लेने पड़े, कैश फ्लोज भी नहीं रुके। तो
पॉजिटिविटी रहती है जब आपके कर्म ठीक होते हैं और प्रोग्रेस रहती है। अब सिंगापुर में एक फाउंडेशन है और ये वहाँ की सबसे टॉप कंपनी उसको चलाती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, उनकी फाउंडेशन है, उनकी सरकार की है कंपनी एक्चुअली। तो स्टुअर्डशिप एशिया सेंटर वो साल में 25 अवार्ड देते हैं टू स्टुअर्ड लीडर्स। ओके। और वो कंपनियां वो होती हैं जिनको अवार्ड मिलता है, दीज हैव टू बी कंपनीज दैट वर्क फॉर प्रॉफिट बट दे ट्रीट प्लेनेट फर्स्ट। और पूरे पैसिफिक एशिया जोन में 25 अवार्ड मिलते हैं, उसमें कर्मा एक्सीलेंस को एक अवार्ड उन्होंने दिया। दे कॉल इट द SL25 अवार्ड। हम प्रॉफिट छोड़ के प्लेनेट के लिए काम करते हैं और इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेडली ह्यूज प्रॉफिट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट SAC के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका नाम है राजीव पेशावरिया। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है सस्टेनेबिलिटी। वाओ। और उसमें केस स्टडीज उन्होंने लिखी हैं। 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, एक जो कहती है प्लेनेट फर्स्ट, नंबर 2 इज लुकिंग आफ्टर आवर पीपल, एंड नंबर 3 इज प्रॉफिट। दूसरे माइंडसेट की कंपनीज होती हैं, ये कंपनी का मतलब ही है बिजनेस, प्रॉफिट सबसे ऊपर, उसके बाद पीपल, फिर प्लैनेट, उसके नीचे पे प्लेनेट। अगर पिछले 100-150 साल की आप हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एंड देयर परफॉर्मेंसेस देखें, जो कंपनीज प्लेनेट फर्स्ट थी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल निकल के आई। उसमें टाटाज को एक केस स्टडी लिया गया है। एक फेबर कैसल करके कंपनी है, पेंसिल्स एंड कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करती है, ह्यूजली प्रॉफिटेबल, प्लेनेट फर्स्ट काइंड, वो केस स्टडी है। प्रॉफिट फर्स्ट कंपनीज, उन्होंने कहा भी एक कंपनी है आपकी बोइंग, उसमें हम सब देख ही रहे हैं आजकल कितने प्रॉब्लम है, राइट। और एक वोक्सवैगन कंपनी है, इनका बहुत बड़ा डीजल गेट स्कैम करके हुआ था। और वो कह रहे थे वोक्सवैगन वाले मेरे को फ्री गाड़ी देने आ जाएं तो मैं वो भी नहीं लूंगा, बिकॉज दे डोंट केयर फॉर द प्लैनेट, दे ओनली केयर फॉर प्रॉफिट। सो जो प्रॉफिट फर्स्ट काइंड ऑफ कंपनीज हैं वो सूनर और लेटर स्कैम्स, फ्रॉड्स, बैंक्रप्सीज, क्लोजर, एक टिपिकल कंपनी की लाइफ स्पैन बताइए उन्होंने 18 या 19 साल होती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती। जो लेगेसी कंपनीज 50, 100, 150 साल वाली होंगी वो हमेशा प्लैनेट फर्स्ट होंगी, अदर स्टेक होल्डर्स, एनवायरमेंट इंटरेस्ट, इसको ज़्यादा अहमियत देंगी और प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट रहेगा और प्रॉफिट ह्यूज आएगा। वेरी ट्रू। ये ना केवल सस्टेनेबिलिटी बुक्स से, राजीव पेशावरिया से मैंने सीखा है, उन्हीं से हमने SL25 अवार्ड भी रिसीव किया है और उसी टाइप की कंपनी शायद हम आज हैं और उसी रीजन से हम अपना सक्सेस एट्रीब्यूट कर सकते हैं कर्मल एक्सलेंस का। Very good thought. This has inspired me to do more in my own company for the planet. प्रॉफिट तो कायनात लाके देगी, पीपल बाबा भी कहते हैं, राजीव पेशावरिया भी कहते हैं। क्योंकि आपके कर्मा सही रहेंगे सच में, जेन्युइनली। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, और इससे एक और चीज़ होगी, क्योंकि आप नेचर से जुड़े हुए हो, आप ग्राउंडेड रहोगे, आप काइंड रहोगे, आप हमेशा बड़ा पिक्चर देख पाओगे और आप इंक्लूसिव रहोगे, इंक्लूसिव। यू विल बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द प्लेनेट, वेरी ट्रू। यू विल बी रिस्पेक्टिव ऑफ द क्रिएटर्स क्रिएशन। क्रिएटर तो हमें मिला नहीं है अभी तक, हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि कोई क्रिएटर होगा जिसने क्रिएशन बनाई है, ये सारी ट्रू कॉस्मोस बनाई है। अगर आप उस क्रिएशन को पूजा की तरह ट्रीट करेंगे, रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे, तो क्रिएटर विल पॉजिटिवली रिवॉर्ड यू। Even the small act of planting a tree, this inspires me a lot.
So have you heard about Spiti, sir? Spiti, In this place. the place Spiti Delhi. Yes. So we started off our tours from Kechi Dham, which is Neem Karoli Baba Ashram is there. He's our guru. And then we started off with Spiti. The Spiti we are sending every week. We are sending 2 tempo travel, the 24 people every week. These are normal days. So Spiti started off by me going on a cycle on the expedition of Spiti. So क्या हुआ कि मेरे फ़ोन में और कुछ चल नहीं रहा था, डाउनलोडेड कोई सॉन्ग्स वगैरह नहीं थे, बस भगवद गीता थी और वही आई यूज्ड टू प्ले द डेली. इट वाज अ 10-day एक्सपीडिशन ऑन साइकिल अलोन. और उसमें एक बहुत प्यारी बात बोली गई कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ. एंड देन आई मेट पीपल बाबा थ्रू दैट थिंग ओनली. एंड मतलब आई फॉरगॉट टू टेल यू, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, बट अगर आपको गॉड से भी पास में जाना है, थोड़ा सा भी कनेक्टेड फील करना है, स्टार्ट प्लांटिंग अ पीपल ट्री. Yes. स्टार्ट विद पीपल ट्री बिकॉज पीपल को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बट इट ठीक नहीं. इज मैजिकल. मैं पीपल का बताता हूँ आपको. हमने एक नई चीज सीखी, पीपल बाबा से ही सीखी. ओके. वो बिल्डिंग कॉर्नर्स में बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स के थ्रू सीड आता है. पहली चीज तो पीपल तब स्प्राउट होता है जब उसका बीज एक किसी पक्षी की गट में से ट्रैवल करता है. उसने बीज खाया, उसकी गट से ट्रैवल करता है. उसके एक्सक्रीटा में पीपल का सीड था, वो किसी कोने में उसने ड्रॉप किया. वहाँ पे बिल्डिंग कॉर्नर्स में इधर उधर रैंडमली आ जाते हैं. और जब हम देखते हैं ये बिल्डिंग को क्रैक्स कर देंगे, डैमेज कर देंगे पीपल, तो उनको तोड़ते हैं. कई लोग उसको रिलीजियस ट्रीट करके नहीं भी तोड़ते. लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ये सारे जो हैं पीपल बिल्डिंग कॉर्नर्स के हर साल 500 से लेके 1000 तक हमारी एक टीम है. उसको हम कहते हैं ये पीपल रेस्क्यू टीम है. ओके. वो सारे ये सैपलिंग्स को रेस्क्यू करके नर्सरी में ले जाते हैं. इनको गमले में रख के 1.5 साल तक पाल के 1-2-4 फुट बड़ा करते हैं. फिर ट्रक भर के पीपल बाबा के पास सोशल फॉरेस्ट्री के लिए जाते हैं. तो दूसरा सीड्स टू सैपलिंग्स हैं जो ट्रक भर के जाते हैं. रेस्क्यूड पीपल ट्रीज जाते हैं. अब ये कितनी यूनिक चीज़ है, किसी ने सोची नहीं होगी. द सीड हैज टू ट्रैवल थ्रू द गट ऑफ अ बर्ड टू स्प्राउट. तो from building corners, we should not randomly take them out and just throw them away, but respectfully take it out with a little bit of root remaining, plant it in a pot, nurture it, and then plant it in a public park, in a forest close to your place, or People Baba Zindabad. उनको दे दो. Nice. सर डिस्पाइट या फिर आपने पूरे अपने जीवन काल में जितने भी अप्स एंड डाउन देखे बिजनेस में, उससे प्लीज शेयर सम लर्निंग्स विद द ऑडियंस, विद मी, अबाउट द बिजनेस. I've seen setbacks. I've seen heartbreaking situations. But again, there's always a positive side to look at it. Be positive and be resilient. Never give up. As a school student, father's business of lotteries leading to abuse and ridicule, I had a choice to say, अब मैं बड़े होके ये करूँगा, वो करूँगा. But somehow something happened to me. मैं तो लॉटरी बेचूंगा. और वही बेची. 5 करोड़ रुपए की रोज की टर्नओवर करी. ये नहीं मैंने रोज की. इसी से हिंदुस्तान का हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर बन गया था. फिर पर्यावरण का शौक पड़ा. जमीन खरीदनी है पेड़ लगाने के लिए. बिजनेस करने के लिए तो सोचा भी नहीं था. बिजनेस तो हो गया. इसीलिए यही मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है. बिजनेस किया नहीं जाता, हो जाता है. सो लेसन्स तो यही है. लिव रिस्पॉन्सिबली. मेरे कंपनी में 7 सेक्रेड वर्ड्स रहते हैं. क्लीन, ग्रीन, सेरीन एंड रिस्पॉन्सिबल. साइट्स, साउंड्स एंड स्मेल्स. इन 7 चीज़ों का ध्यान रखो. कायनात आपके साथ है. सक्सेस इज श्योर टू हैपन. You may not be successful in making the best money, but you'll lead a successful life. बाकी तो डेस्टिनी है. बट सर, सक्सेसफुल लाइफ कम्स थ्रू अर्निंग मनी, राइट? या फिर नहीं? It's one of the tools. But I do not deny it. Absolutely do not deny it.
it's a necessary lubricant that runs the engine. Why not? We all need and often I use the expression money is not a dirty word. कोई गिल्टी होने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतने पैसे क्यों कमा लिए. As long as your conscience is clear, you worked hard, you worked creatively, you had the courage, you were a risk taker, go for it. And if you get success, be proud of it, celebrate it. Even if you don't, it's okay. I think if you don't get success in it, it's totally fine. You have successful, non-moneyed people on this planet. You have unsuccessful, financially rich people. Sometimes I also use the word Financially rich. poor rich. Poor A rich. person who does not have a spirit of caring, sharing and abundance, I call him poor rich. जब मेरे को पैसों की बहुत तंगी आती थी, एक टाइम था लाइफ में, तो मेरे फादर की बहुत कपलेट्स होती थी, तो उसमें से एक मेरे को बहुत एनर्जी देती थी. वो कपलेट थी, लिखने वाले ने लिख दी मेरी किस्मत में गरीबी, मगर फरमाया था कि मिजाज अमीराना रहेगा. इसका मतलब क्या है? I may be financially not super abundant, but I have a spirit of abundance, of caring, sharing, thinking beyond my selfish self. तो फरमाया था कि मिजाज अमीराना रहेगा. So this is what thought always energizes me even today. Sir, how's your perspective and your dad's perspective is different from your dad's perspective about business and life? See, what is common Here. is that values are very much more important. You have to be a man of your word. जो जबान दी है उसको ऑनर कर लें हमेशा. डोंट प्ले डर्टी गेम्स, डोंट टेक शॉर्टकट्स. लोगों को साथ लेके चलो, स्पिरिट ऑफ अबंडेंस से चलो. डोंट ट्राई टू मोनोपोलाइज ऑल सक्सेस एंड बिकॉज जो चीज़ समेट के रखोगे वो खत्म हो जाएगी. जो बांटोगे, और इवन इन लीडरशिप, the more you delegate, the more power you give to others, the more powerful you will become. When you have to hire people higher than yourself. Higher than? Okay. Hiring of people who are higher in intellect or creativity than yourself, if you do that, you will create a company of giants. But if you have complexes, ये तो मेरे से भी ज़्यादा समझदार लग रहा है बंदा, इसको मैं अपने कंपनी में नहीं हायर करता. So if you have that mindset, you will create a company of dwarfs. So you have a choice by deciding what kind of people you will hire. So that's another important thing. My leadership team, I always keep reminding them, अपने से समझदार आदमी हायर करो अपनी कंपनी में. इनसिक्योरिटी में मत जियो कि ये तो मेरे से ऊपर निकल जाएगा. इनसिक्योरिटी में जियोगे तो आप तो वैसे भी डूबोगे. तो ये सिंपल लाइफ प्रिंसिपल्स हैं जो बिजनेस में भी अप्लाई करते हैं. That's a very good point. But delegate, okay, so आप कह रहे हैं कि अगर हम किसी को हायर करते हैं तो उनको एक उन पे वो काम छोड़ दिया जाए, उनको पावर दी जाए टू मेक अ डिसीजन. पहले तो हायर करते टाइम हमें लगता है, अगर मैं एचआर हूँ और मैं किसी को अपना डेप्यूटी हायर कर रहा हूँ, बात करने में लग रहा है तो इतना तेज है, कल को तो मेरा जॉब ही तो नहीं खा जाएगा. पॉसिबल? राइट. सो नहीं, लेट्स नॉट हायर दिस पर्सन. So if you hire people lesser than yourself, and that next person will hire a person even lesser than himself, you're in the future you'll have a company of dwarfs, not giants. और आप अपना ही काम बढ़ाओगे बाय और prosperity आप नहीं आप नहीं ला पाओगे. नाइस. दिस इज ग्रेट. मेरे को सर प्लीज मेरे को और सीखना पड़ेगा आपसे अबाउट द बिजनेस, बिकॉज दीज आर सम चैलेंजेस दैट वी काउंटर ऑन अ डे टू डे बेसिस इन द बिजनेस थिंग. ठीक है. अब मेरे पार्टनर्स की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो यही थी ना कि आई केप्ट हायरिंग स्मार्ट पीपल, गाड़ियां बांटी, पैकेजेस बांटे, इंसेंटिव्स मिलियंस में दिए, और वो कहते रहे ये तो लंगर बांट रहे हो आप. और जिस दिन टाइम ठीक होगा
आप हमें कंपनी चला के और कमाई नहीं दे रहे होगे, उस दिन हम आप पे झूठे केस बना के आपको सबक सिखाएंगे। तो कोई नहीं, जब सबक सिखाने की उन्होंने कोशिश करी, 3 हफ्ते जेल भी मैं रहा, उसके बाद भी कोई बदले लेने की भावना से, बदला लेना या रिवेंज इज अ फार मोर इंटेंस इमोशन देन लव। जिसको आप हिट करते हैं, उसको सोच सोच के आप इतना ज़्यादा जलते सड़ते रहते हैं कि आप जिसको प्यार करते हैं उसके लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचती, कम रह जाती है एनर्जी। सो मैं हमेशा ये भी एक बात सिखाता हूँ, hate and negativity is a far more intense emotion, intense energy than love and positivity. And therefore, do not nurture it. Do not allow it to be in you for too long. Very true. Very true. Great. Sir, since this is the last question, if any parting words for our audience about the episode? I would like everybody to do one bending exercise every day Okay. and make this planet a clean, green, serene place. Happy people spreading happiness, responsible people living responsibly, and be good role models to your children. बच्चे को कहते हैं जी वो दरवाजा जो खड़का रहा है उनको बता दो पापा घर में नहीं है, फिर बाद में उनको लेसन देते हैं बच्चों झूठ नहीं बोलना चाहिए. So be good role models to your subordinates, your staff, your children, whichever teams you lead. Be good leaders. Walk the talk, basically. Be good humans. Yeah. Be inclusive. And you'll make a happier, healthier, more successful planet for your children to enjoy. One more thing I tell people, this whole planet today is an unhealthy, unhappy, overcrowded place which has lesser resources and more demand on them. So if possible, go on a child production holiday. कभी कभी लोग कहते हैं जी फिर हमारे वंश का क्या होगा. मैं क्या, आप कोई चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो जिसको वंश बनाते रहना है, आगे चलते रहना. आपने कौन सी बड़ी तीर मार लिए, मैंने कौन से बड़े तीर मार लिए. सो वंश बिजनेस. मेरे बच्ची का जब मैरिज हुई तो मैंने क्लियरली उनको बोला था कि मेरा ये मानना है कि आपको कोई चाइल्ड प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए. हस्बैंड वाइफ हैप्पीली सारी जिंदगी जियो. डोंट ऐड मोर चिल्ड्रन टू द ओवर क्राउडेड प्लानट. 4 साल तक उन्होंने बच्चा डिफर किया. उसके बाद उन्होंने कहा हमारा बहुत दिल है. मैंने कहा इंडिया इज अ फ्री कंट्री. हु एम आई टू स्टॉप यू? I can give you my views, but it is your life. Lead it the way you want. When the child comes, I love the child to death. If you don't bring, I'm happy. You don't add to the population growth. So these are a few things that I live by every day. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Thank you. It's lovely talking to you. Thank you.